टाइप्स, फंक्शंस, उससे रिलेटेड बहुत कुछ हमने सीखा है। फिर बाद में स्पेशल केसेस हमने देखे हैं, एज इन व्हेन हाउ टू यूज डेट्स, डेट रिलेटेड, उससे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है इंफॉर्मेशन, ऑल दोस थिंग्स, राइट। Then we started with null values, something like filling the null values or handling the missing data. Okay, how to handle the missing data, or this was the case working with missing values, because in real, like whenever you are dealing with the data set, it's not always you will have 100% data, right? So there will be some missing values. So how to handle those missing values, what to do, what are the strategies? So there are different strategies, 3 to 4 strategies are there, which you can use depending upon your case, your scenario. Okay, so we'll see one by one how to use those approach and then handle the missing values. Okay, working with dates, आपने किया है क्या practice वगैरह? There was one question which is missing from my side. I will confirm tomorrow. Okay, so we'll start with the missing values. Uh, so missing values, and where is the data frame? वो कल एनएन का कुछ मिस्टेक आ रहा है। हाँ, वही पेंडिंग है, वो आपको कल बता दूंगा। ये पीडी है। ओके, ये दिस। ओके, डेटा फ्रेम इज रेडी। ये कल हमें ये आ रहा था df.isNA का कुछ, we missed something ना। हाँ, is null पे हमने we wanted to convert this check, so we wanted to check. I will check today as well, I forgot. Okay, so कल हमने देखा कि मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते। देयर इज द फंक्शन कॉल्ड isNA.sum which gives you column wise missing values, and then if you add one more sum it will give data frame level missing values, as in complete data frame में कितने missing values है। So one sum is for column and one sum is for entire data frame. Okay, and isNA is boolean, it will give true and false. df.isNA will give you true and false whether you have blank values or not, right? So हमने फिर percentage निकाला था हर एक का, then percentage wise you can find it out how many values are missing, how you can handle all those things. Okay, whether dot index से index मिलता है आपको उस data frame का। So अभी आपको पता चला कि there is a missing value and आपने find out भी किया and उसका percentage भी निकाला, you found out the number as well. But what to do with the null values? So there are different approach, क्योंकि with null values आप analysis नहीं कर सकते, as in it will be a wrong. इधर आपको delete करना पड़ेगा, remaining data पे analysis करना पड़ेगा, or else you need to use different approach. तो first approach is dropping the null values. मतलब क्या करेंगे, डायरेक्टली रिमूव कर देंगे जो भी नल वैल्यूज है। ओके, विल क्लीन द डेटा, दिस इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। जहां पे भी नल वैल्यूज वगैरह है यू कैन फिल इट इन। सो df डॉट शेप, शेप से क्या पता चलता है, रोज एंड कॉलम्स। सो 1 0 0 2 rows and 5 columns, right? Maybe if you want we can open this, then df.drop_na. What drop_na does is it drop means removes na values, drop na. So final, you can see if the na value, what it will does, it removes entire row, drop na, complete data remove कर देता है, मतलब out of कोई भी नहीं है। So in the second record I don't have data here, so ये डायरेक्टली रिमूव कर देगा। ऐसे यहाँ पे ये नहीं है तो ये डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। So similarly it doesn't मतलब it doesn't distribute कि उधर एक सिर्फ कॉलम है या दो है तीन है, ये ऐसा कुछ डिफरेंशिएट नहीं करेगा।
if it finds any column, एक भी आपको null value मिला और blank, it will remove the data completely. Okay, so that's what is happening. You can see Honda white, then directly it has gone to Toyota, because 0, 1 and 2 indexes, they have a null values, so that's why it is removed, like these two values. ये देखिए, है ना? So ये दोनों remove कर दिया है. So this is 0, 1, 2 remove and 3. You can see the data here. Finally, how many rows are there? 745. 1002 थे out of 300 rows आपके remove हो गए, drop हो गए. Drop is, it removes that. Then you can print करके भी आप देख सकते हो क्या क्या है. What are there? 0, 3, 6, 9, 12, 9, 98, 1102, something related to this. So this is one of the approach. Okay, but important आपको ये देखना है यहाँ पे, there is one thing called view change at view level. Soft copy deep copy का ही एक थोड़ा advanced concept है. So what happens is, whenever you are dealing or whenever आप कुछ calculation कर रहे हो data frame के ऊपर, so what Python does is, क्योंकि अब हमारे केस में देखिए, if we removed 1000, drop any लिखा हमने, 300 rows delete हो गए. बट इफ यू ऑब्जर्व, नॉट ओनली रोज, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डिलीट हो रहा है, इट इज रिमूविंग ऑल द डेटा एज वेल अलोंग विद दैट रो. तो ये डेटा लॉस होता है यहाँ पे, राइट? एंड यू कैनॉट रिकवर दिस डेटा. वंस आपने ड्रॉप एने कर दिया तो वहां रिवर्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, कंट्रोल जेड वगैरह कुछ नहीं है. सो व्हाट पाइथन डज इज, जब भी आप ऐसे मॉडिफिकेशन करते हो डेटा फ्रेम में, मतलब ड्रॉप एने हो गया, फिल हो गया, और कुछ भी चेंज करते हो डेटा रिलेटेड, पाइथन और pandas क्या करता है, इट ओनली क्रिएट्स अ टेम्पररी कॉपी. ओके, लेट अस सी व्हाट इट डज. इफ यू ऑब्जर्व हियर, df.drop_na हमने लिखा है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे drop na हो गया है, राइट? इफ आई चेक माई na df, अभी तो ड्रॉप होना चाहिए, 700 रोज आना चाहिए ना. इफ यू चेक, आपको वापस 1002 आ रहा है. अभी तो आपने ड्रॉप किया था ना ऊपर. सो देन, सो दिस इज कॉल्ड अ व्यू लेवल चेंज. तो मोस्टली जब भी आप डेटा फ्रेम चेंज करते हो, डिलीट ऑपरेशन इज द, लाइक डिलीट वगैरह कुछ करते हो डेटा, तब ये व्यू लेवल पे चेंज होता है. एज इन सिर्फ इस लाइन के लिए ये चेंज होगा. आप डेटा फ्रेम वापस रन करोगे तो वो अपने आप रीसेट हो जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ सॉफ्ट डिलीट किया है, हार्ड डिलीट नहीं किया है. ओके, सो हार्ड डिलीट करना है आपको, तो देयर इज समथिंग इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है आपको. मतलब df डॉट ड्रॉप na बट इन प्लेस ट्रू, मतलब df के जगह पे ही जो नया कॉपी क्रिएट होगा उसको सेव करना है. so if you execute this line, okay, and print करोगे तो ये चेंजेस परमानेंट होंगे. ये देखिए 0369 ये दिख रहा है क्योंकि ड्रॉप एने का है. एंड यहाँ पे if I print, ये देखिए 0369. नॉट ओनली दिस, आप कहीं पे भी प्रिंट कीजिए अभी डेटा फ्रेम, इट इज परमानेंटली चेंज्ड. ओके, df if I print, ये देखिए 0369, बिकॉज आपने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आर्ग्यूमेंट पास किया था. ओके, क्लियर ऑनलाइन? So that is one major difference between the operations here. Okay, I'm reading one more file, car missing cells again. So अभी आप रिवर्ट नहीं कर सकते. आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए तो मान लीजिए मुझे df ओरिजिनल चाहिए, यहाँ पे 745 आ रहा है, so I need to go back 1002 रोज जहाँ पे थे वहाँ. So you don't have any other option. एक बार चेंज हो गया, आपने इन प्लेस ट्रू कर दिया, मीन्स यू नो व्हाट यू आर डूइंग. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिवर्ट. कंट्रोल जेड वगैरह ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है. ओके, ऑनलाइन मतलब वी यूज नो अनडू, एंड व्हेनेवर एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम होता है और इफ यू रीराइट डेटा, सो सच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल. सो लोग क्या करते हैं, एट द स्टार्ट ओनली विल क्रिएट टू कॉपीज, एक बैकअप और एक ओरिजिनल,
राइट, मतलब जिस पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आगे जाके हमने कुछ ड्रॉप कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, तो आई कैन रीड माई बैकअप कॉपी एज वेल। नहीं तो डायरेक्टली रीड कीजिए वापस से स्टार्ट वन pd डॉट रीड csv शुरू, क्योंकि ये पाइथन में चेंज हो रहा है, ये एक्सेल चेंज नहीं करता, बैकएंड में एक्सेल फाइल चेंज नहीं करेगा, ये जो भी हो रहा है पाइथन में ही है। ओके, बट यू नीड टू री run again. So I created df once again with the same data which is available in my file 0123, right? df.isNA.sum, same आपको values आ रही है। So now what you can do is, there is one more parameter called axis. Okay, axis 1 is for column and axis 0 is for rows. मतलब अभी तक क्या हो रहा था, जिस रो में ब्लैंक वैल्यू है उस रो को हम डिलीट कर रहे थे। व्हाट इफ आपके पास कंडीशन है जिस कॉलम में ब्लैंक है उस कॉलम को ही डिलीट कर दो पूरा, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, देन देयर इज वन पैरामीटर कॉल्ड एक्सेस। ओके, एक्सेस 1 एंड एक्सेस 0। तो एक्सेस 1 करोगे आप, इट विल वर्क ऑन द हॉरिजॉन्टल। ओके, एक्सेस 0 है तो वर्टिकल, 0 is for horizontal, 1 is for vertical. Okay, so I am passing axis is equal to 1. So ideally what should be the answer? Answer is blank. ये देखिए blank दिख रहा है ना, empty data frame। क्यों empty data frame? क्योंकि इस कॉलम में blank है तो ये पूरा कॉलम डिलीट करेगा, इस कॉलम में blank है यहाँ पे तो ये भी डिलीट करेगा, इस कॉलम में blank है तो ये भी डिलीट हो गया, राइट? इस कॉलम में है क्या? हाँ ये है यहाँ पे, सो आई हैव डिलीटेड दिस। इस कॉलम में है यहाँ पे, सो डिलीट। तो बचा क्या फिर? 5 कॉलम था, दैट्स व्हाई इट सेज एम्प्टी, सॉरी, एम्प्टी डेटा फ्रेम। ओके, सो प्लीज बी माइंडफुल जब भी आप ये ऐसे एक्सेस देते हो एंड देन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लगाते हो, बाय डिफॉल्ट वो पूरा डेटा और डेटा चेंज हो जाता है। ओके, आपके पास रिवर्ट का ऑप्शन नहीं होता। So again, I want to revert, read CSV. There is no other option. हाँ हाँ, इन प्लेस नहीं लिखा तो इट विल नॉट चेंज परमानेंटली। इन प्लेस छोड़ के कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे दो, इट डजंट मेक इट डजंट चेंज एनीथिंग। So again I need to read same. Okay, then shape. Now you can see there are few more parameters called how and subset. Subset is means I will cross check how many columns I need to delete, as in ये पूरा जो रिकॉर्ड है, मान लीजिए इस रिकॉर्ड में देयर आर इम्पोर्टेंसेस ओडोमीटर और प्राइस, ये दो इम्पोर्टेंट कॉलम है, तो मैं प्रोग्राम को ये बताऊंगा इफ दिस टू डेटा में ब्लैंक है तो ही इस रिकॉर्ड को डिलीट करो, नहीं तो मत करो। लाइक दिस यू कैन मैनिपुलेट, मतलब कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम्स आप लिख सकते हो। मान लीजिए मेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाकी सारा डेटा है, तो दैट इज ओके फॉर मी। मतलब मेरा कुछ एनालिसिस है जो कलर रिलेटेड है और ओडोमीटर रिलेटेड है, डोर रिलेटेड है, तो दैट मे बी आई कैन डू इट। और इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ हियर, I know color is not important for me, so what I can do is I will keep these two records, okay? Because color, it doesn't matter कि color है कि नहीं है analysis के लिए आप। So based on requirement, you can adjust the parameters. So how and all, there is one more parameter called how. So you can read all these parameters कहाँ से? Drop एने पे क्लिक कीजिए, shift tab, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सेस, एक्सेस इज इक्वल टू 0 और 1, हाउ, एनी, ऑल, एनी स्पेस ऑल है, वो स्पेस नहीं दिख रहा है, इधर एनी कर सकते हो नहीं तो ऑल। मतलब क्या होगा, चारों रिकॉर्ड नल है तो ही डेटा डिलीट करो, नहीं तो मत डिलीट करो। और बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एनी, मतलब चार में से कोई भी एक रहेगा तो डिलीट करो। सो बिहेवियर यू कैन एडजस्ट। ओके,
देन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये भी है यहाँ पे फॉल्स। सो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। बाय द वे दिस इज डॉक्यूमेंटेशन विच वी आर रीडिंग। आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिखेंगे। एक्सेस इज इक्वल टू, आपको 1 एंड 0 याद नहीं रखना है तो डायरेक्टली एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स लिखिए, नहीं तो रोज लिखिए इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन 0 एंड 1, राइट। सो एक्सेस इज इक्वल टू रोज, एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम। हाउ हाउ इज ऑल, कीप ओनली द रो विद एटलीस्ट 2 NA वैल्यूज। मतलब ऐसे कुछ लिखना है, मतलब 5 कॉलम है उसमें से 2 डेटा रहना चाहिए मिनिमम। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्रेशोल्ड, THRESH, threshold. All these are the parameters. You can read, keep only 2 rows with at least 2 non-NA values. Okay. Column check करना है, drop NA मतलब define in which column to look for missing values। मतलब ऐसे कौन से वैल्यूज में, कौन से कॉलम में मिसिंग वैल्यू देखना है, तो सबसेट, राइट। सबसेट इज इक्वल टू ये। क्लियर सबको? सो ऑल दीज आर नथिंग बट पैरामीटर्स। आपको पता है फंक्शन क्या है, ड्रॉप एन। इसके बाद इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है तो देन यू नीड टू रेफर द पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स है, उसके कौन से मीनिंग्स है, क्या कर सकते हैं। ओके। अगेन आप सोचोगे कि सर ये सब कुछ याद कैसे रखना है, राइट। इट इज नॉट आइडियली नॉट पॉसिबल, बट आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉप इन ए फंक्शनैलिटी है, दैट इज, और उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए आई हैव अ पैरामीटर्स। तो वो क्या पैरामीटर्स है, आप डॉक्यूमेंटेशन रेफर कर सकते हो। ओके। प्रैक्टिस के लिए एक दो याद रखिए, बाकी का आप बोल सकते हो सर आई नो फ्यू पैरामीटर्स विच आर अवेलेबल, आई कैन रेफर द डॉक्यूमेंटेशन एंड गेट दिस टास्क कंप्लीटेड, बोल सकते हो ना। एटलीस्ट यू नो कि अप्रोच क्या है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्लियर? क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी फंक्शन, for each and every function or method in the pandas they have parameters। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, एटलीस्ट वन और टू इफ यू नो। आप बाकी के पैरामीटर्स पढ़ के, डॉक्यूमेंटेशन रीड करके, नहीं तो गूगल करके यू कैन गेट योर वर्क डन। क्लियर एवरीवन? ओके। so you can refer documentation which is मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक्सेस, हाउ, एनी, ऑल, डिटरमाइन हाउ रो एंड कॉलम इज रिमूव्ड फ्रॉम डेटा फ्रेम व्हेन वी हैव एटलीस्ट वन NA और ऑल। एनी मतलब एटलीस्ट वन है, ऑल मतलब सब कुछ, राइट। थ्रेशोल्ड, सबसेट, इन प्लेस, इग्नोर इंडेक्स, some ignore related is there। okay, so fill NA, lot of, on the left side you can refer, यहाँ पे सब कुछ है, ये देखिए। कैन यू सी स्क्रॉल? मतलब ऐसा कोई भी आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपके पास नहीं है जो यहाँ पे कवर नहीं होगा, राइट। दैट्स व्हाई pandas इज फेमस, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द फंक्शन। यू कैन रेफर फ्यू मोर। देखिए मीडियन निकालना है तो यहाँ पे लिखा है मैक्स, कर्टोसिस, डिफरेंस निकालना है तो कर्टोसिस, स्टैटिस्टिक्स, एनीबॉडी इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, in short if I mean, so this is a distribution graph, boolean, sorry, uh, normal distribution. This is a graph of normal distribution। okay, so this is how data is distributed normally। then आपके पास ऐसे भी हो सकता है ना ग्राफ, और आपके पास ये ऐसे भी ग्राफ हो सकता है। so ये जो पिकेडनेस बोलते हैं इसको, मतलब कितना शार्प कर्व बना रहा है, दैट इज नथिंग बट अ कर्टोसिस। so उसके अलग अलग, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। स्लोली आपको पता चलेगा, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अ डेटा साइंस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्टोसिस, पिकेडनेस, लेफ्ट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यू, राइट स्क्यू क्या रहता है। ओके, देन देयर आर फ्यू, देखिए ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स, वैल्यू काउंट, राइट। हमने एन यूनिक, यूनिक नंबर ऑफ काउंट्स, बिटवीन टाइम, एट टाइम, ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके भी है कुछ, ड्रॉप एन जैसा डुप्लीकेट्स भी है, राइट। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है। सेट, सेट एक्सिस, सैंपल, रीनेम, री इंडेक्स,
लास्ट, IDX min, क्या है देखना पड़ेगा आपको, IDX min max, ओके, बैकफिल, ट्रंकेट, ओके, रिप्लेस, ड्रॉप, लेवल, पिवोट, बाय द वे पिवोट टेबल जो एक्सेल में हम पिवोट टेबल करते थे, तो जो आपने एक्सेल में सीखा है एंड पाइथन में सीखा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज, ओके। सो ड्रॉप डायरेक्टली, जो यहाँ पे एक ड्रॉप na था जिसमें नल वैल्यूज ड्रॉप होते थे, बट इफ आई वांट टू ड्रॉप कंप्लीट कॉलम, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ na है कि नहीं, आई नीड टू डिलीट दिस कॉलम, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप नाम का फंक्शन है, df डॉट ड्रॉप, क्या करना है, कॉलम कौन सा, डोर्स, फिर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये नहीं दिया तो क्या होगा, इन प्लेस ट्रू नहीं लिखा है तो इफ आई रिमूव दिस व्हाट हैपेंस, ये देखिए रिमूव हो गया, मेक कलर ओडोमीटर प्राइस df, इफ आई एग्जीक्यूट df अगेन, है यहाँ पे वापस आ गए, सो इफ आई मेक इट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ओके, सेम रिजल्ट सेम आएगा, देन इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए df एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इट्स रिमूव्ड, राइट, you can print, then there are few things related to duplicated, by default it thinks first occurrence is duplicate है कि नहीं ये चेक करना है, ओके, फिर ड्रॉप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, आपको डुप्लीकेट है कि नहीं चेक कीजिए, फिर बाद में ड्रॉप डुप्लीकेट के लिए ड्रॉप डुप्लीकेट फंक्शन है, डुप्लीकेट के भी अलग अलग वेरिएशंस है, मान लीजिए लाइक इफ यू ऑब्जर्व, मे बी लास्ट है, ओके, तो ये लास्ट के चारों रिकॉर्ड, पांच, हाँ ये चार, राइट, ये देख सकते हो आप, सो इसमें से आपको कंडीशन है कि ये मुझे रखना है, फर्स्ट वन, लास्ट के रिमूव करना है, some condition when if you have something related to that, और आपको पहले तीन निकालना है, लास्ट ऑकरेंसेस सिर्फ रखना है, ओके, ये डेटा रखना है क्योंकि ये आखिरी में इंटर किया था, मान लीजिए फर्स्ट टाइम गलत हुआ था, सेकंड टाइम भी गलत हुआ था, बट वॉट एवर इज इंटर्ड एट द लास्ट टाइम इट इज करेक्ट, सो ऊपर वाले डिलीट कर दीजिए फिर, सो दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। यहाँ देखिए ड्रॉप डुप्लीकेट रखना क्या है, लास्ट वाला रखना है, कीप इज इक्वल टू फर्स्ट करोगे तो वो फर्स्ट रखेगा, लास्ट करेंगे तो लास्ट रखेगा, क्लियर, और डुप्लीकेटेड क्या करता है आपको दिखाता है ट्रू एंड फॉल्स, ये देखिए आखिरी के चार वैल्यू ट्रू दिख रहा है क्योंकि ये चारों डुप्लीकेट है, बट रखना आपको कौन सा है, लास्ट वाला, कीप लास्ट, मतलब लास्ट हमारा फॉल्स आएगा, बाकी तीनों ट्रू आएंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ड्रॉप एनए, सेम, इफ यू डेटा क्लीनिंग रिलेटेड ये सारे आते हैं, डेटा क्लीनिंग में आपको पहले तो एनए क्लीन करना पड़ेगा, फिर डुप्लीकेट्स क्लीन करने पड़ेंगे, ओके, देन नेक्स्ट अप्रोच 2 which is a filling the null values, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार मैं डिलीट कर सकता हूँ तो देन इट्स ओके, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज, आप भर भी सकते हो, जहां जहां ब्लैंक है वहां पे डेटा फिल कर सकते हो, so there are few more methods related to fill, constant नंबर भी हो सकता है, fill एवरेज भी हो सकता है, fill मोड नहीं तो मीडियन वैल्यूज भी कर सकते हो आप, ओके, नहीं तो प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यूज, मतलब मान लीजिए यहाँ पे if I take लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ प्राइस, तो इंस्टेड ऑफ ये पूरा डिलीट करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटा का एवरेज लेता हूँ और उस एवरेज को यहाँ पे भर देता हूँ, ओके, दैट कैन बी वन ऑफ द अप्रोच, इससे क्या होगा, तो एटलीस्ट डेटा गलत तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हो जाए, एवरेज तो प्राइस आएगा ना, 10 लोगों का जो भी एवरेज मार्क है वो तो आ सकता है, so that is one of the approach, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू है 1994, ये यहाँ पे भर दो डायरेक्टली, ओके, दिस कैन बी वन ऑफ द अप्रोच, और एल्स नीचे जो वैल्यू दिया है 134, ये यहाँ पे भर दो 13434, so these are the different approach available at your disposal, so ये कौन सा लॉजिक कब यूज करना है, that you need to decide based on the business condition, आपका डेटा क्या है, आपका बिजनेस क्या है, इससे क्या मीनिंग क्या निकलता है,
मान लीजिए मैं ऊपर वाला वैल्यू, ओके, अभी इन आवर केस ये ब्लैंक था, राइट, ये ब्लैंक था, ओके, अभी आपने भर दिया जो ऊपर वाला वैल्यू है वो नीचे भर दिया, तो जस्ट टू अवॉइड कि आपको लगा कि ऊपर वाला डेटा सेम हो सकता है, हमने सीक्वेंस में भरा है, बट कैन यू सी BMW का प्राइस एंड होंडा का प्राइस सेम रहेगा? नहीं, राइट, इससे डेटा मिसमैच होने के भी चांसेस है। सो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट और डेटा रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आपका क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट पॉसिबल है, जो भी आपको अचीव करना है दैट इज पॉसिबल, दैट टू विदाउट राइटिंग एनी लॉजिक, ना आपने कहीं फॉर लूप लिखा, ना इफ लिखा, ना कॉपी लिखा, पेस्ट लिखा, वेरिएबल, कुछ भी नहीं। सो कैसे करना है ये सारे फंक्शन, पहले तो यूनिक वगैरह, लेट मी रीड दिस अगेन, देन यूनिक क्या करता है, मेक में से यूनिक आता है, एन यूनिक क्या करता है, नंबर ऑफ यूनिक, ओके, कलर में से नंबर ऑफ यूनिक, मेक में से नंबर ऑफ यूनिक, वैल्यू काउंट क्या करता है, वाइट के कितने हैं, यूनिक नंबर तो निकाला, यूनिक के नंबर ऑफ काउंट्स निकालता है, व्हाइट कलर की कितनी गाड़ियां है, ब्लू कलर के कितने हैं, ब्लैक कलर के कितने हैं, रेड के कितने हैं, राइट, ऑल दोस थिंग्स आपको डायरेक्टली मिलता है, कलर्स का काउंट, देन फिल एन ए, फिल एन ए, जैसे ड्रॉप एन ए था वैसे फिल, ड्रॉप मतलब निकलना, फिल मतलब भरना, किससे भरना है आपको, व्हाइट कलर से, जहां जहां भी एन ए है भर दीजिए व्हाइट कलर, ये देखिए पूरा व्हाइट हो गया, राइट, फिर काउंट लीजिए, आपको समझ में आएगा, कलर का काउंट 925 हो गया, पहले कुछ अलग था, ओके, df2 डॉट काउंट 925 था, ओके, लेट्स चेक वंस अगेन, व्हाइट 382 है, df2 कलर डॉट काउंट 925 है, कहाँ पे, ओके, fill in a white, okay, and then this is, oh, count, check, यहाँ पे I want you to check, by the way क्यों नहीं हो रहा है, अभी तो हमने डिस्कस किया था, वो डेटा चेंज कर रहा है ना पूरा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इसीलिए मैंने क्या किया, शिफ्ट टैब करके, ये देखिए, क्योंकि डेटा फ्रेम में पूरा डेटा चेंज कर रहा हूँ ना, जो भी डेटा फ्रेम है, तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, अल्टर जो भी है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना है, आप पास कर सकते हो कैसे, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, राइट, देन रन आ गया 1002, क्लियर, so whenever you are manipulating data, please remember, fill in a white भर दिया, in place is equal to true का ही एग्जांपल है वापस, fill in a जीरो से भरना है मुझे डायरेक्टली अभी, और फर्स्ट 15 अभी देखिए यहाँ पे ब्लैंक था, ये रिकॉर्ड ब्लैंक था, इसमें हमने fill in a करके जीरो भर दिया, राइट, क्लियर, और मल्टीपल फिल एन करना है, मतलब मेक की जगह होंडा, कलर की जगह व्हाइट, ओडोमीटर की जगह, ओडोमीटर इज नथिंग बट किलोमीटर, किलोमीटर की जगह ये, डोर की जगह ये, इंडिविजुअल कॉलम फिल करने के बजाय डायरेक्टली आप एक डिक्शनरी पास कर सकते हो, की एंड वैल्यू पेयर, राइट, ये डिक्शनरी है, फिल एन में डिक्शनरी पास कर दो, वो अपने फिल कर देगा इंडिविजुअल, राइट, then forward fill, there is something called method ffill, f is forward fill, ऊपर वाला नीचे जो हम देख रहे थे ना, बैकवर्ड फिल, ये देखिए देयर आर टू फंक्शंस, एफ, एक तो डायरेक्टली फिल एन में मेथड इज इक्वल टू एफ फिल यूज कर सकते हो, नहीं तो df2 इज इक्वल टू एफ फिल नाम का इंडिपेंडेंट मेथड भी है, एफ फिल कर सकते हो, ये देखिए आ रहा है, ये दोनों ऊपर वाला नीचे, फॉरवर्ड फिल, अभी बैकवर्ड फिल देखिए, बी फिल, ये दोनों मतलब नीचे वाला ऊपर आ गया, राइट, सेकेंड नंबर पे चेक करना है आपको, ये वैल्यू,
ये वैल्यू कीजिए सेकेंड, राइट। फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल एन ए, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप एन ए, डुप्लीकेट के लिए डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स निकालना है तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स। लॉजिकल है, मतलब इट्स जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं सेम फंक्शन है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेम्बर। ओनली थिंग आपको थोड़ा जो भी पैरामीटर्स है दैट मे बी यू कैन प्रैक्टिस, अलग अलग पैरामीटर्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन एवरीवन क्लियर? बाय द वे फिल एनए में मैं एवरेज भी भर सकता हूँ डायरेक्ट। देखिए फिल एनए किसका एवरेज भरना है, प्राइस डॉट मीन, जो भी मेरा प्राइस का कॉलम रहेगा उसका मीन निकालेगा और वो फिल एनए में जाएगा डायरेक्टली। ओके, कहीं whenever it is, जहां कहीं पे वो ब्लैंक रहेगा इट विल फिल। प्राइस रिलेटेड ये देखिए दिस वन, दिस वैल्यू इज नथिंग बट एवरेज। ओके, देन द थर्ड अप्रोच, पहला अप्रोच पूरा डिलीट करो, सेकेंड अप्रोच फिल करो, तीसरा अप्रोच रिप्लेस द नल वैल्यूज, नल वैल्यूज है तो रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस करना है, df2 डॉट रिप्लेस, एक्चुअली रिप्लेस इज व्हाट, जहां जहां भी 4 है वहां पे 15, जो हम लिस्ट में रिप्लेस यूज करते थे स्ट्रिंग में, इट डज द सेम जॉब। किसको रिप्लेस करना है वो देख सकते हो, टू रिप्लेस एंड वैल्यू, जहां जहां भी 4 है, यहाँ पे 4 है, इट हैज रिप्लेस टू 15। ओके, रिप्लेस फंक्शन। देन देयर इज ग्रुप बाय और मर्ज फंक्शन। ग्रुप बाय और मर्ज ऑप्शन भी आपके पास है। ग्रुप बाय क्या करता है, इंडिविजुअल हो, आप सब लोगों का एसक्यूएल हुआ है ना, आई गेस डीएन 9 का नहीं हुआ है। ओके, सो ग्रुप बाय क्या करता है, फिल्टर करता है आपके पास, इफ यू हैव डेटा स्टेट और सिटी वाइज डेटा है तो ये क्या करेगा, तीनों सिटी का एक कंबाइन करेगा, ग्रुप करेगा, मुंबई का एक ग्रुप करेगा, पेरिस का एक ग्रुप करेगा। दैट इज नथिंग बट ग्रुप बाय ऑपरेशन, मतलब डिपार्टमेंट का डेटा है, सिविल, मैकेनिकल और सारे बच्चों का कॉमन डेटा है, तो ग्रुप बाय करोगे तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल के बच्चों का एक ग्रुप बनाएगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, वॉट एवर डिपार्टमेंट वाइज आपने लिखा है तो वो हो जाएगा। जेंडर वाइज आपने बोला है तो मेल एंड फीमेल का ग्रुप बनेगा, और कॉम्बिनेशन, वॉट एवर कॉम्बिनेशन इफ यू वांट आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग ग्रुप बाय। तो ये ग्रुप बनाता है। ओके, यहाँ पे ये देखिए इंडिविजुअल ग्रुप उसने बनाया है, तो दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप बाय ऑपरेशन। तो ये कैसे, df डॉट ग्रुप बाय, किसके साथ ग्रुप कर रहे हैं, सिटी, मतलब आपके पास 4 सिटी है तो वो हर एक सिटी के लिए एक डेटा फ्रेम बनाएगा। ग्रुप बाय मतलब डेटा फ्रेम बनाएगा। ओके, ग्रुप मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा सॉर्ट करके देगा, इंडिविजुअली आपको ग्रुप और इंडिविजुअली डेटा फ्रेम क्रिएट करके देगा। दोज हु आर फेमिलियर विद द एसक्यूएल उनको समझ में आएगा। ग्रुप बाय में व्हेनेवर यू हिट ग्रुप बाय देन आपको वो इंडिविजुअल क्वेरी और इंडिविजुअल फिल्टर लगा के देता है। ओके, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल, df डॉट ग्रुप बाय, सिटी करना है तो सिटी। ओनली थिंग इज आपको ये प्रिंट करने के लिए टू यूज अ लूप, क्योंकि ये वेदर डॉट df और ये जो डेटा फ्रेम क्रिएट होता है ना, अगेन ये रहता है ऑब्जेक्ट हायर ऑर्डर फंक्शंस, याद है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। लेट्स रीड फर्स्ट, रीड csv वेदर df, ये देखिए वेदर df ग्रुप बाय किया है और वेदर df प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या ऑब्जेक्ट एट द लोकेशन। हायर ऑर्डर फंक्शन सीखा है आपने, हायर ऑर्डर में भी ऐसे ही आता था, राइट। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, उसका भी आउटपुट ऑब्जेक्ट आता था। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एक वेरिएबल में पूरा आपका आंसर हाइड हुआ है, राइट। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए और इसको अंदर जो भी है हम क्या करते थे, वेदर वी कैन कन्वर्ट इनटू अ लिस्ट, नहीं तो टपल में आप कन्वर्ट कर सकते। यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक मतलब एक वेरिएबल तो डिक्लेयर होता है बट इसके अंदर दो दो वेरिएबल रहते हैं। एक रहता है आपका नाम, सिटी का नाम,
एंड देन उसका डेटा। ऐसे दो चीजें रहती है उसके अंदर। तो हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिविजुअल लिस्ट वगैरह, लूप करके हमें बाहर निकालना पड़ता है डेटा। लूप मतलब ये देखिए, सिटी एंड उसका डेटा कहाँ से निकाल रहा हूँ, वेदर डॉट डीएफ, मतलब ये ऑब्जेक्ट से। तो प्रिंट सिटी और प्रिंट डेटा, यहाँ पे प्रिंट डेटा हो रहा है ना, और यहाँ पे सिटी हो रहा है। एग्जीक्यूट कीजिए, ये देखिए ऐसे मिलेगा, ये मुंबई और उससे रिलेटेड डेटा, राइट। और बाय द वे इंडेक्स देखिए, डेटा कहीं पे भी हो, आपके डेटा फ्रेम में डेटा कहीं पे भी हो, वो क्लब करके देगा आपको। सिटी का अलग से, न्यूयॉर्क, मुंबई, जो भी सिटी वाइज है, डेटा आपको अलग से करके देगा डायरेक्टली। सो यू डोंट हैव टू यूज इंडिविजुअल फिल्टर्स। देखिए, पेरिस, पेरिस रिलेटेड, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क रिलेटेड। तो ये हो गया सिटी और ये हो गया उसका डेटा। क्लियर। ऐसे ये देख सकते हो आप, इन मतलब मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा ये नाम, यहाँ पे नेम है और उसका डेटा, दिस इज द नेम एंड इट्स डेटा। when I run this group by command, आपको सिर्फ ग्रुप के नाम देखने हैं तो देर इज गेट ग्रुप्स, मतलब इस ग्रुप मुंबई ग्रुप का डेटा देखना है आपको, तो गेट ग्रुप मुंबई, तो मुंबई का डेटा मिलेगा आपको। गेट ग्रुप न्यूयॉर्क चाहिए तो न्यूयॉर्क का मिलेगा। और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हो, वेदर डीएफ जो है, पहले तो डॉट ग्रुप्स करोगे तो ऑब्वियसली ग्रुप्स के नाम आएंगे और उसके इंडेक्स भी दे रहा है, राइट। बट इंटरेस्टिंग यहाँ पे वेदर डीएफ में क्या था, सिटी और उसका डेटा अलग अलग था, बट आई एम यूजिंग द मैक्स कमांड उस डेटा फ्रेम में। तो ये क्या करेगा, हर एक सिटी में मैक्सिमम निकाल के देगा। मुंबई का मैक्सिमम जो भी है वो रिकॉर्ड, न्यूयॉर्क का मैक्सिमम, पेरिस का मैक्सिमम। मतलब नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूट और नॉट ओनली फिल्टर अप्लाई होगा, इंडिविजुअली फिल्टर्स अप्लाई होंगे। मतलब जितने भी ग्रुप्स है आपके पास, उस पे सारा डेटा चेंज होगा। ओके, ग्रुप बाय, क्योंकि ग्रुप बाय के बाद वो डेटा फ्रेम चेंज हो गया ना। हाँ, उससे पहले तो वो डेटा आपको बस एग्जैक्टली एक्सेल फाइल था, बट एक्सेल फाइल को कन्वर्ट करना है आपको, राइट। यू कन्वर्टेड दैट एक्सेल डेटा इनटू टू डिफरेंट सेक्शंस, ग्रुप, एक ग्रुप एंड उसका डेटा। ओके, नॉट ओनली दिस, min max, ऑल दोस डेटा फ्रेम रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। df डॉट डिस्क्राइब करोगे तो टेम्परेचर, विंड स्पीड, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा। मिनिमम निकालना है तो हर एक सिटी में मिनिमम निकालेगा आपको। ओके, सो हाउ इट वर्क्स, उसका सिंपल एक मतलब आप फ्लो समझ सकते हो। पहले ये डेटा फ्रेम था, आई गेस आपका यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये पहले था, यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रुप बाय लगाया, राइट, df डॉट ग्रुप बाय। तो फिर क्या बन गया मेरा, ऐसे अलग अलग बन गए, एक दो तीन, राइट, तीन बन गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, df डॉट मीन, मीन मतलब एवरेज निकाला, अज्यूम यहाँ पे एवरेज का एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, ये ऐसे वर्क होता है, देखिए हर एक डेटा में एवरेज निकालेगा एंड कंबाइन करेगा, एवरेज निकालेगा, कंबाइन करेगा, एवरेज निकालेगा, कंबाइन करेगा। क्लियर, ये देखिए, और यहाँ पे फाइनल आपको तीनों के एवरेजेस मिलेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन। तो थोड़ा एक्सेल रिलेटेड है, एक्सेल में जो जो पॉसिबल था, यू कैन डू इट इन वन लाइन यूजिंग पाइथन। ये सेम एप्लीकेशन कैसे करते थे, प्योर टेबल लगा के भी कर सकते थे एक्सेल में। सिटी ड्रैग करो, फिर वैल्यूज ड्रैग करो, वैल्यूज में सम ऑफ वैल्यूज की जगह मिनिमम सिलेक्ट करो। वैल्यू सेटिंग्स याद है क्या? हम्म, आप नॉट ओनली सिटी बट सिटी एंड विंड स्पीड और सिटी और सम अदर कॉम्बिनेशंस भी ग्रुप बना सकते हैं। आपको और थोड़ा डिटेल में चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट, मान लीजिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स,
और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स में ब्रांच वाइज आपने ग्रुप किया, मैकेनिकल, सिविल, बट आपको अभी जेंडर वाइज भी करना है। मैकेनिकल में मेल, फिर उसमें मैक्सिमम कौन है, मैकेनिकल में फीमेल, फिर मैक्सिमम। इफ यू वांट दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ग्रुप बाय में दो दे दो कॉलम, डिपार्टमेंट एंड जेंडर। एग्जांपल यहाँ पे भी सिटी एंड विंड स्पीड दिया है, वैसे डिपार्टमेंट एंड जेंडर। यू कैन क्रिएट सच डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। आपको देखना है कि आपको देखना है, गाड़ी का एग्जांपल लीजिए और व्हीकल रिलेटेड डेटा है, फ्यूल टाइप ले लिया आपने, ओके, डीजल पेट्रोल ईवी। डीजल पेट्रोल ईवी में और एक ग्रुप बना है, जैसे सीडान हो गया, एसयूवी हो गया, राइट। फिर उनके कॉम्बिनेशन में सबसे हाईएस्ट एसयूवी का प्राइस कौन सा है, मतलब ईवी एसयूवी उसका प्राइस। सो अलग अलग, दिस इज नथिंग बट अ ग्रैन्युलैरिटी, इसको बोलते हैं ग्रैन्युलैरिटी। अलग अलग कॉम्बिनेशंस का डेटा आप गैदर कर सकते हो ऑनलाइन। होप यू आर एबल टू गेट इट। देखिए मुंबई 5, मुंबई 12, मुंबई 15, न्यूयॉर्क 6, मतलब मुंबई में 15 डिग्री टेम्परेचर था तब डेटा क्या था। मुंबई में जब 12 डिग्री जो भी विंड स्पीड था, मुंबई 5, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड और जो भी यूनिट रहेगा उसका, एंड देन यू कैन गेट द डेटा उस दिन क्या हुआ था। Then there are merge related some operations, as in if you want to combine the data, merge is also there। जो फंक्शन का नाम है वही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ड्रॉप एनए, ड्रॉप डुप्लीकेट, और मर्ज, स्प्लिट, कंबाइन, ये सारे फंक्शंस है विच यू कैन परफॉर्म ऑन डेटा फ्रेम। और इनका ऑपरेशंस भी सेम है। आपको कंबाइन नाम का फंक्शन दिखेगा, वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। स्प्लिट नाम का फंक्शन दिखेगा, वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, राइट। सो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। मान लीजिए रोल नंबर है फिजिक्स है, ओके, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रोल नंबर एंड केमिस्ट्री। रोल नंबर और केमिस्ट्री का डेटा है यहाँ पे, मतलब केमिस्ट्री के सर ने केमिस्ट्री के मार्क्स भरे, फिजिक्स के सर ने फिजिक्स के मार्क्स भरे हैं, राइट। अभी आपको कंबाइन करना है, मार्कशीट बनाना है ना, कंबाइन। क्या अलग अलग मार्कशीट आता है आपको हर एक सब्जेक्ट का, नहीं, राइट। देन you need to use a combine or merge, pd pandas dot merge। कहाँ, कौन से दो मर्ज करना है, डेटा फ्रेम 1 एंड 2। किसके ऊपर मर्ज करना है, रोल नंबर के ऊपर, मतलब कॉमन क्या है ये देना है आपको। कॉमन कॉलम का आप स्पेसिफाई करोगे तो डेटा विल बी अप्रोप्रिएटली फिल्ड। मान लीजिए रोल नंबर के बेसिस पे आपने कंबाइन किया है और मर्ज किया है, तो रोल नंबर को एक कॉमन फील्ड ट्रीट किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। सिर्फ मर्ज भी कर सकते हो, df1 df2 वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी करेगा कि कॉमन कॉलम कौन सा है। यू डोंट, मतलब आपको यह पता नहीं है, डेटा बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्टली मर्ज कर दो, जो कॉमन कॉलम है उसके ऊपर वो मर्ज हो जाएगा। कॉमन कॉलम नहीं है तो डायरेक्टली कंबाइन कर देगा सब डेटा, ओके। Then in the merge, there are few interesting things such as join. Those SQL का याद है क्या किसी को, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। इफ याद नहीं है, नॉट एन इशू, दिस इज अ सेट। यूनियन, इंटरसेक्शन, हमने देखा था सेट डेटा टाइप जो है पाइथन का उसमें। सो सेम है, मान लीजिए देयर आर टू टेबल्स, वन इज दिस टेबल, वन इज दिस टेबल। जब भी आप लेफ्ट ज्वाइन लगाओगे तो ये पूरे लेफ्ट टेबल में डेटा आएगा एज वेल एज कॉमन डेटा आएगा, राइट। राइट का ज्वाइन लगाओगे, राइट साइड के टेबल में जो डेटा है वो आएगा एज वेल एज कॉमन डेटा आएगा, ओके। इनर ज्वाइन क्या करता है, सिर्फ कॉमन डेटा आपको आउटपुट में देगा, राइट। फुल आउटर, ये दिस एंड दिस डबल एंट्रीज रहती है फुल आउटर ज्वाइन में।
बाय द वे जस्ट क्यूरियस, फुल ज्वाइन जो है, फुल आउटर ज्वाइन, इसमें कितने रिकॉर्ड्स आएंगे? मान लीजिए देर आर 4 रिकॉर्ड्स ऑन राइट, 4 रिकॉर्ड्स ऑन लेफ्ट और 2 कॉमन है। यस, यस, आर यू श्योर? 6? व्हाट अबाउट अदर्स? ऑनलाइन तो ऐसे ही है ना? फुल आउटर ज्वाइन में? okay. Excellent, those who have answered 6 they are correct. पहले इनर ज्वाइन लीजिए, बचा हुआ फिर ऐड करिए, इट्स अ फुल आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में कितने आएंगे? 4 है, 2 कॉमन है। इनर ज्वाइन में कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि कॉमन जो है उतना। अभी बचा कितना है? इससे 2, इससे 2, कंबाइन कीजिए, इनर का 2, इसका 2, इसका 2, 2 2 2 6, राइट? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, ज्वाइन के बिना आपका इंटरव्यू नहीं होगा, राइट? ज्वाइन से ही स्टार्ट होगा एक्चुअली इंटरव्यू, मतलब स्टार्ट वहां से शुरू होगा, देन इट विल गो एसपी, ट्रिगर, आपको जो भी है फंक्शंस आपने सीखा होगा, एसक्यूएल में भी फंक्शंस है, राइट? तो इट विल, so this condition also you can mention called how left, right, outer, inner. इंडिकेटर ट्रू से वो सिर्फ बताएगा, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है, ये देखिए, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, उसके आंसर्स, और इंडिकेटर इज इक्वल टू ट्रू कर दिया तो आपको पता भी है, देखिए ये 3 कंबाइंड डेटा है, ये दोनों लेफ्ट से है, ये दोनों राइट से है, राइट? क्लियर? सेम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था वही है, 5 5 है यहाँ पे, और 2 5 5 और 3 कॉमन है, राइट? ये देखिए 3 कॉमन वाले, बचे हुए 2 और 2। मर्ज में आप स्पेसिफाई कर सकते हो इनर आउटर ज्वाइन, पूरा एसक्यूएल यू कैन डू इट। एसक्यूएल में जो ज्वाइन आपको समझ नहीं आएगा, यू कैन परफॉर्म इन पाइथन एज वेल एंड अंडरस्टैंड। ग्राफिकली आपको वो दिखा दे रहा है यहाँ पे कि कौन सा रिकॉर्ड कौन से टेबल से आ रहा है। या देखिए बोथ लेफ्ट राइट दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट ओनली, राइट ओनली, मतलब ये राइट में है, सिर्फ राइट साइड के टेबल में। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज पिवट टेबल। पिवट, एक्सेल में हमने जो पिवट टेबल इन डिटेल में सीखा है, द सेम थिंग यू कैन सी इट हियर। बाय द वे क्या रहेगा, जस्ट अ क्यूरियस, पिवट टेबल के लिए फंक्शन, पांडास में पिवट टेबल ड्रॉ करने के लिए फंक्शन pd डॉट पिवट टेबल। ओके, वेरी लॉजिकल। देखिए पिवट अंडरस्कोर, pd डॉट पिवट अंडरस्कोर, फिर उसके सेम डेटा फ्रेम इंडेक्स आर फंक्शन, जो हम वहां पे वैल्यू काउंट लेते थे, राइट? ड्रैग करते थे वैल्यूज, देन इट विल ऑटोमेटिकली वो सम होता था, मेन मैक्स होता था, राइट? फिर इंडेक्स में क्या करते थे, ब्रांच, एंड देन कौन से डेटा फ्रेम में ये, तो डायरेक्टली ऑल दोस फंक्शंस आर अवेलेबल हियर। ये देखिए इंडेक्स, ब्रांच एंड वैल्यूज। ओके, ये डेटा थोड़ा अलग है, एज इन एक्सेल का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बट हमने जो एक्सेल में किया है, आप ड्रॉ करके देखोगे तो यू विल गेट द सेम पिवट टेबल। हाँ, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दिस इज विजुअल ओनली, नो? नहीं, लाइक इन टर्म्स ऑफ ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे ना, उसके लिए अलग लाइब्रेरी है। दिस pandas इज यूज्ड फॉर ओनली कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ओके, सो ग्राफ वगैरह अलग है। बाकी ऑल दे देखिए, वैल्यूज दे सकते हो, फंक्शन दे सकते हो, कॉलम दे सकते हो, इंडेक्स दे सकते हो, all those functions which we have seen in Excel pivot, you can use it. By the way, not only this, अभी आपने जो pivot table बनाया, ये आपको Excel में चाहिए और डेटा फ्रेम Excel में चाहिए, तो what you can do is toCSV नाम का फंक्शन है। जैसे read CSV रीड करने के लिए, सेव करने के लिए toCSV,
df2.2 csv, एग्जीक्यूट हो गया। माई एक्सेल डॉट एक्सएलएस, ये कहाँ से होगा? जहाँ पे आपका ये फाइल है, मेरे केस में यहाँ पे मेरा फाइल है, सो मे बी आई कैन सी माई एक्सेल, ये फाइल है। देखिए क्रिएट कब हुआ है? अभी हुआ है 12 तारीख 6:20। ओपन करके देखिए, हो गया। देखिए सेक्शन जैसे आपने डेटा फ्रेम बनाया था वैसे करके आपको सेव करके दिया है। बाय द जो आप पूछ रहे थे ग्राफ वगैरह, we can do it in pandas as well, but pandas is not preferred. It's not preferred way to do it because it's not that user friendly और ऐसा visually appealing नहीं है। तो let me read the CSV, create the group by weather and then direct weather, मुंबई का weather, sorry मुंबई weather df dot get group by, sorry ये फंक्शन है get group by, ये मुंबई का डेटा है। आई कैन प्लॉट डायरेक्टली, ये देखिए df डॉट प्लॉट है, नहीं तो ये मेरा जो डेटा फ्रेम है उसके ऊपर प्लॉट, क्या प्लॉट करना है? बार, एंड देन एक्स एक्सिस क्या रहेगा? सिटी। ओके, मुंबई और उसके वैल्यूज अलग अलग, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर। प्लॉट करने के लिए प्लॉट, बार प्लॉट करने के लिए डॉट बार भी यूज कर सकते हो, नहीं तो एक और एक शॉर्टकट है कॉल्ड काइंड। मतलब ये डेटा फ्रेम है, प्लॉट काइंड, काइंड में आप डिफाइन कर सकते हो बार चाहिए, लाइन चाहिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। सो यू कैन सी इट हियर, ये देखिए सम बॉक्स प्लॉट चाहिए तो काइंड ऑफ बॉक्स प्लॉट है। आपको सिटी वाइज चाहिए, सिटी वाइज है, देखिए अलग अलग सिटी के डेटा है, राइट। प्लॉट में जाके आप देख भी सकते हो व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल। मतलब if I go on the plot, shift tab, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एक्स एंड वाई, ऐसे तीन आप पास कर सकते हो पैरामीटर्स। ओके, नॉट ओनली दिस, काइंड में क्या क्या आ सकता है? लाइन, बार, बार एच, हॉरिजॉन्टल, बॉक्स प्लॉट, केडी, डेंसिटी, डेंसिटी प्लॉट, एरिया, पाई, स्कैटर, हेक्स बिन। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, यू कैन फॉलो वन बाय वन प्लॉट करके देखिए। ओके, यस, लेबल वगैरह भी बहुत सारे हैं ऑप्शंस। देयर इज पैरामीटर्स वगैरह आपको देना पड़ेगा। लीजेंड दिख रहा है? ट्रू, प्लेस लीजेंड ऑन एक्सिस सब प्लॉट, राइट। सो यू नीड टू, देयर इज फिगर साइज, फिग साइज विच डिफाइंस की ग्राफ कितना आएगा आपका, मतलब साइज यहाँ पे आपको ये छोटा लग रहा होगा, यू कैन इंक्रीज द साइज, विड्थ वगैरह इंक्रीज करके पूरे जो आपने बनाया है डायग्राम चार्ट वगैरह, दैट यू कैन एक्सपांड। मतलब आपको कॉपी पेस्ट करना है कहीं पे, किसी को दिखाना है, यू कैन डू इट, बट दैट इज देयर आर फ्यू लिमिटेशंस। आप देख रहे होंगे कि इतना अच्छा नहीं दिख रहा है ये, दिस इज जस्ट अ बेसिक चार्ट, आपको समझ में आ रहा है, बट आपको थोड़ा एडवांस चाहिए, then we need to use some different libraries which will provide more detailed, आपको ग्राफ्स वगैरह बना के देगा, and then you can save those graphs as well. Clear? So documentation में बहुत सारे options available है, if you want you can refer the document for the plot as well. So हमने जो वो options possible है with the pandas हमने सारे कवर किए हैं। डेटा रीड करना, उसका कैलकुलेशन करना, दैट इज बेसिक थिंग। मतलब एक कॉलम है, उसका मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये करो, और डिवीजन, पावर, ये हमने ऑलरेडी बेसिक देखा ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमने आज बहुत कुछ देखा है, सच एज प्योर टेबल हो गया, राइट, एंड देन ग्रुप बाय हो गया, मिसिंग वैल्यूज हो गए, डेट्स जो हमने कल देखे थे, दैट इज द सेम, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में आपको यूज कर सकते हो। क्लियर?
ओके सो कल हम देखेंगे कि दिस इज हाउ इट लुक्स डेटा। ये देखिए और इंटरेस्टिंग ग्राफ्स आप निकाल सकते हो। डोंट ये देखिए Scatter plot. स्कैटर प्लॉट, ये देखिए और अच्छा इनहांस्ड वर्जन, और आपको ये अपीलिंग हो जाएगा बहुत। ये देखिए इसका अलग से साइज आई हैव इंक्रीज सो दैट आई कैन रीड इट प्रॉपरली। ये देखिए सो सच इंटरेस्टिंग ग्राफ्स बार चार्ट। बाद में इसमें थीम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट थीम, कलर कॉम्बिनेशन, ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड बार, ऑल दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल। स्टैक्ड बार हो गया, राइट। ये देखिए हीट मैप, फ्लाइट रिलेटेड डेटा है, डेटा एनालिसिस, क्विक इनसाइट्स के लिए, राइट। कलर वाइज ग्रीन पता चल रहा है, जहाँ पे डार्क है वो 600 है, मतलब यहाँ पे 600 है, यहाँ पे कम है। तो क्विकली आप क्या बोल सकते हो, देखिए 1994 से 1960 तक इंक्रीज हो रहा है डायरेक्टली डेटा, आप बता सकते हो आप, है ना, बाय यूजिंग कलर। नॉट ओनली दिस, मंथ के वाइज भी आप बता सकते हो। देखिए मंथ वाइज ऐसे ग्राफ आप देख सकते हो, शुरुआत में थोड़े कम रहते हैं, बीच में बढ़ जाते हैं, देन अगेन लेस, राइट। सो विल सी। यस पैसे कमी झाल्यावर बरोबर लोनचे फोन येतात तुम्हाला. डेटा एनालिसिस, ओके ओके नॉट एन इशू, विल सी दिस। थोड़ा ये कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, बार प्लॉट वगैरह क्या है, राइट, एवरीथिंग विल कवर टुमारो, नॉट एन इशू। एंड देन एक बार ग्राफ वगैरह हो गया, देर इज थोड़ा टेक्निकल है, आखिरी दिन के लिए रखेंगे, वेब स्क्रैपिंग वगैरह, इंटरनेट से डायरेक्टली डेटा उठाना है आपको करना है, वो थोड़ा टेक्निकल है, विल सी। Okay, so everyone, hope you people are able to understand what is happening. Okay, I know थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, but हो गया, not a big deal. Another 1 2 days max. Okay, by this week end maybe we'll close it. Clear? ठीक है, ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ में यू नोट ओनली नीड टू कैसे कर सकते हैं, है ना। ओके सो थैंक यू, thanks a lot all of you for your time. Okay, I have one more lecture now, so maybe we can disconnect.